السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، گفتگو کے آداب، ویسے آداب اور اخلاق پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج کا سیریل نمبر 9 ہے۔ کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی گفتگو کے آداب کے بارے میں، اسی کو جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ گفتگو کے آداب میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ بہت زور سے نہ بات کرے، خاص کر جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گفتگو جو ہے وہ ایسی کی جائے کہ سامنے والا سن لے، بس اتنا کافی ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور ایک اسی کے آگے کہا ہے کہ بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ وَأَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، ایسا آیت ہے نا وہاں جی۔ تو اس لیے گفتگو کے آداب میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں ہم جیسے علماء لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو پھر سامنے والے کو نیچا دکھلانے کے لیے کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ زور سے بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بہت اچھا بول رہا ہے اور بہت حق بول رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ زور سے بولتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو جب فرماتے تھے تو اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے گفتگو کے آداب میں یہ ہے کہ جہاں پر علم والے بیٹھے ہوں، علم سے مراد یہ ہے کہ جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اس کا عالم موجود ہے، اور عالم سے مراد وہ فارغ نہیں ہے۔ مثلا ایک بات چل رہی ہے کمپیوٹر کی، اب مجھے کمپیوٹر کے بارے میں معلوم ہے، ویسے میں عالم ہوں تو میں کمپیوٹر کا کوئی عالم نہیں ہوں، لہذا ایسی جگہ پر مولانا صاحب کو خاموش رہنا چاہیے۔ جو جس کا موضوع ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ بات سیدھے نیٹ کے بارے میں یا فیس بک کے بارے میں ایسی گفتگو ہو رہی ہے، اب مولانا صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے اس کا کیا ہے معاملہ، لیکن اب وہ چونکہ مولانا ہے لہذا ان کو بولنا ہے، تو ایک غلطی مولانا صاحب ایسے کرتے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تھوڑی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگے اور مفتی صاحب بن گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اس کے باوجود بھی فتویٰ دڑا دڑ ڈال کر چلے جائیں گے، ایک مرتبہ بھی نہیں بولیں گے، مطلب سوچیں گے کہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اور ہے بھی تو ہم سے بڑا جاننے والا یہاں موجود ہے اور اس کو بات کرنی چاہیے۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ جماعتیں جو نکلتی ہیں اس جماعت میں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ایک جگہ جماعت پہنچتی ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس گاؤں میں فلاں عالم رہتا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ عالم سے نہیں کہیں گے آپ بات کیجیے، وہ خود بات کریں گے۔ یہ بھی ایک دم اصول کے خلاف بات ہے۔ ان سے جب بات کی جاتی ہے، یہ باتیں ہم کر رہے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو، اور اس میں کوشش ہو رہی ہے کافی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے مشورے میں یہ طے ہوا ہے کہ فلاں آدمی بات کرے گا۔ ہم نے کہا مشورے میں یہ بھی طے کر لو کہ اگر وہاں عالم رہے گا تو یہ بات نہیں کرے گا، یہ بھی مشورہ ہو گیا۔ اگر مشورہ ہی وہی کا درجہ ہے تو آپ کے نزدیک، حالانکہ مشورہ کوئی وہی کا درجہ نہیں ہے، مشورہ مشورہ ہے، مشورہ لیا بھی جا سکتا ہے، مشورہ ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، مشورہ بدلا بھی جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مشورہ کوئی وہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مشورہ ہی کی اتنی اہمیت ہے تو آپ اسی وقت یہ مشورے میں طے کر دیں کہ اگر جس گاؤں میں یا جس جگہ پر، آپ حیرت کریں گے ہمارے مدرسے میں جماعت آتی ہے، اب تو خیر نہیں آ رہی ہے، پہلے آتی تھی، تو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، مطلب کم سے کم 8-10 لوگ مفتی عالم بیٹھے ہیں، ایک جاہل کھڑا ہو کر کے تقریر کر رہا ہے وہاں، اس کو عالم کا نام لٹھا نہیں معلوم ہے، اس کو یہ نہیں سکھلایا گیا کہ اگر وہاں موجود ہے ایک عالم تو وہ بات کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کے مقابلے میں یقینی بات ہے کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات پوچھتے تھے، سینکڑوں مرتبہ نہیں ہزاروں حدیث میں یہ لفظ ذکر ہے کہ حضور سوال بھی پوچھتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانے آپ جانے، اللہ جانے آپ جانے میں بھی سمجھ لیجیے جملہ بیچ میں آ گیا ہے،
अल्लाह जाने आप जाने में सिर्फ उसी जगह साहबा ने कहा है कि जिसको आप जानते थे। जैसे आज की गुफ्तगू में आज है, मिसाल के तौर पर एक आदमी बड़ा नेक था, आप बोलते हैं अल्लाह जाने रसूल जाने, ये जुमला सही नहीं है। अल्लाह जानता है, रसूल नहीं जानते कि वो नेक है कि नहीं। आकर के जिब्रील अमीन ने पूछा क़यामत कब आएगी, उन्होंने कहा ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। तो ये जुमला हर जगह नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन साहबा, हुजूर ने पूछा आज कौन सा दिन है, अब दिन सबको मालूम है कौन सा दिन है, उन्होंने कहा कि आप जाने अल्लाह जाने। वजह क्या थी? उनको ये था कि शायद कोई बात नहीं बताने वाले हैं, हम लोग अगर खुद से बोल देंगे तो वो जो बात आनी है वो बात नहीं आ पाएगी, लिहाजा अल्लाह के रसूल की जानिब से बात आए। पूछा कौन सी जगह है, साहब जाने अल्लाह जाने। अब जगह मालूम है, मैं वैसे पूछूं भाई कौन सा गांव है, वहां आप बेहतर जानते हैं, लेकिन हमसे ये कहने की जरूरत नहीं इन सवालों में, क्योंकि मैं कोई नई बच्ची नहीं, वहां पर रसूल का मामला था। तो बताना ही चाह रहा हूं कि जहां पे इल्म वाले मौजूद हों, वहां पे ऐसे लोगों को जिसको उस टॉपिक पर मालूमात नहीं है, बेहतर यह है कि खामोशी अख्तियार किए रहें, तो नई बात भी आलिम की तरफ से आएगी और आपकी इस्लाह भी होगी। कितने लोग हैं, बहस मुबाहिसा होता है, एक आलिम बैठा रहता है, फतवा दागते रहते हैं दनादन। ये क़यामत की अलामत में से भी है कि आलिम बैठा होगा, जाहिल लोग क्या करेंगे, फतवा देंगे, ये अलामत क़यामत है। बहरहाल इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बुखारी की रवायत है कि 3 आदमी सफर कर रहे थे और उसमें से एक साहब का रास्ते में अलग हुए और उनका मर्डर हो गया। तो 4 आदमी गालबन थे या 3 थे। तो जब उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुहिम पर भेजा था, उन्होंने जा करके बताना चाहा कि पूरा वाक़या कैसे पेश आया और ये सहाबी का कत्ल कैसे हुआ। तो वो जब पहुंचे बताने के लिए, तो उसमें जो छोटा आदमी उम्र के लिहाज से भी था और इल्म के लिहाज से भी रहा होगा, तो उन्होंने बात शुरू की। उन्होंने कहा नहीं, बात करेगा फकब्बिर, बड़ा आदमी है वो बताए मामला क्या है, आप खामोश रहिए। तो इससे क्या मालूम हुआ कि अगर एक जगह पर सारे लोग बराबर के मालूमाती हैं, तो वहां पर भी उम्र का लिहाज रख करके क्या है, जो संजीदा आदमी है, जो मामले को ज्यादा समझ रहा है, उससे बात कराई जाएगी। तो उन सबको हुजूर ने खामोश किया, नहीं मामले की बात आप बताइए। तो आपने फरमाया कि नहीं, बड़ा आदमी जो है वो गुफ्तगू करे। साहबा भी कभी बतौर एम्बेसडर के, सफीर के जाते थे, तो इस बात का ख्याल रखा जाता था कि किसको अमीर बनाया जाए। और कभी कभी अगर कोई छोटी उम्र वाला बहुत काबिल होता था तो उसको भी अमीर बना दिया गया, जैसे हजरत उसामा को अमीर बना दिया, जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा आदमी उनके अंडर में था। तो उसकी मसलहत होती है, वजह होती है। वो ऐसा कभी, ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसा करना कोई हराम है, उस बात को जो है वो अमीर समझेगा कि कहां पर किस किस्म से मामला किया जाए। इसी तरीके से 3 आदमी बैठे हों या 4 आदमी बैठे हों, तो 2 आदमी आपस में बैठकर बात नहीं करें, ये गुफ्तगू आदाब गुफ्तगू के खिलाफ है। जैसे 3 आदमी बैठे हैं, 2 आदमी कहना अच्छा इधर आओ, ले जाकर कोने में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। इससे करने से वो तीसरा आदमी को बदगुमानी पैदा होती है कि ये मेरे बारे में ही बात हो रही है। ऐसा एकदम नहीं करना चाहिए, कुरान करीम की आयत के खिलाफ है। इसी तरीके से 3 आदमी हैं, 2 आदमी एक जबान जानते हैं और एक आदमी वो जबान नहीं जानता है। तो आप जैसे मिसाल के तौर पर बैठे 3 लोग, सभी उर्दू जानते हैं, लेकिन 2 उसमें ऐसे हैं जो तमिल जानते हैं। तो आपस में तमिल में गुफ्तगू शुरू कर दें और तीसरे को क्या कर दें, किनारे कर दें, ये भी एकदम गलत है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। या ये कि यूपी के 2 लोग बैठे हैं और उनको देहाती मालूम है और एक आदमी शहरी बैठा हुआ है, तो उस शहरी को आउट कर दिया आपने और अपनी जबान में जो है गुफ्तगू करने लगे, ये नहीं होना चाहिए। ये आदाब गुफ्तगू के खिलाफ है और इससे बदगुमानी पैदा होने के चांसेस हैं। बात जब चल रही हो तो बात को काटना नहीं चाहिए, बुखारी की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत भी अगर कोई बात करता रहता था तो बीच में जो है ना काटते नहीं थे, उसकी पूरी बात हो जाने देते थे। जब पूरी बात हो जाती थी तो जो बात करना हो करे। लेकिन ये कि 2 आदमी बात कर रहे हैं
और उसी में आप में कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें जैसे दीन की बात हो रही है, ऐसा हमारे साथ बहुत होता है, तो उसमें कुछ लोग बैठे हैं जिनको दीन से दिलचस्पी नहीं, वो आपके टॉपिक को चेंज करना चाहेंगे कि किसी तरह आप टर्न ले लें। ऐसी जगह पर आप कतई टर्न नहीं लें, बल्कि कोशिश करें कि उनको दबाने की कोशिश करें। ये शैतानी हरकत होती है। कभी कभी आप क्या करेंगे, दीनी बात करेंगे, कुछ लोग उसी महफिल, हालांकि वैसे नहीं सोते हैं, वो फौरन सोने की एक्टिंग शुरू कर देंगे ताकि आप जो है वो तवज्जो नहीं दे पावे। ये सब शैतानी हरकतें होती हैं। तो बात दो आदमी अगर कर रहे हो तो बात को काटना नहीं चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता प्लानिंग से काटा जा रहा है कि ताकि ये दीन की बात न होने पाए, या ये कि मिसाल के तौर पर नमाज के ना पढ़ने पर गुफ्तगू हो रही है, अब उसमें दो आदमी बेनमाजी बैठे हैं, तो वो चाहेंगे बेनमाजी जो है कि किसी तरह ये गुफ्तगू खत्म हो, ये टॉपिक चेंज हो। हर आदमी कहता है कि हमारे खिलाफ कोई टॉपिक हो तो लंबा नहीं चलना चाहिए, और जिस टॉपिक से आपको दिलचस्पी होती है आप वो चाहते हैं कि बार बार इसका जिक्र किया जाए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है कि बद्दीन लोग क्या करते हैं, दीन वालों की बातों को काटने की कोशिश करते हैं। ये अगर प्लानिंग से किया जाता है तो बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर आदत खराब हो गई है तो आदत को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। किसी की बात को दरमियान में काटना अच्छा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू के आदाब में अब अमल करके ये बात भी बताई कि जब कोई आदमी बात कर रहा हो तो पूरी तवज्जो से उसकी बात सुने। जैसे कोई आदमी सामने बैठा हुआ, आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो सामने वाले को तकलीफ पहुंचती है, लिहाजा उसकी पूरी बात सुने, मुकम्मल तौर पर सुने, और इतनी तवज्जो से सुने कि वो समझे कि बहुत शौक से ये बात सुन रहा है आदमी, तो सामने वाले को पूरी बात करने का अच्छा मौका मिलता है, और भूली बिसरी बात भी उसके क्या होते हैं याद आती है। लेकिन अगर आप तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि वो आदमी नर्वस हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसी बात की जा रही है महफिल में, या कि जो बेतुकी बात है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, वहां पर आप अगर डायरेक्ट मना करने की पोजीशन में नहीं है कि ये टॉपिक बंद करो, तो आप वहां पर बेतवज्जो दिखलाएं, ताकि हो सकता है कि थोड़ा सा शऊर होगा तो टॉपिक को क्या करेगा, वो खत्म करेगा। लेकिन अगर दीनी गुफ्तगू हो रही है, अच्छी बातें हो रही हैं, तो पूरी तवज्जो से बात को सुनना चाहिए। ये आपका आदाब गुफ्तगू में है। इसी तरीके से अगर बात ये महसूस करने वाला कि सामने वाला समझा नहीं है, कभी कभी होता ना, महसूस हो जाता है बॉडी लैंग्वेज से, बदन को देख करके, उसके एक्टिंग से मालूम हो जाता है कि बंदा बात नहीं समझ रहा है। हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, ऐसा आप बारहा करते थे कि आप एक बात को 3 मरतबा फिर कहते थे। एक मरतबा कह देते थे और फिर जो है वो दोबारा फिर उसको समझा करके कहते थे, और तीसरी मरतबा भी करते थे। बाज़ वक्त तो लगातार 3-3 मरतबा करते थे गुफ्तगू, कि सामने वाले को बात पूरी दिल में उतर जाए। यही वजह है कि सहाबा जो इतनी हदीसें इन्होंने याद कर लिया, उसकी एक बुनियादी वजह में से ये भी एक वजह है कि एक बात को वो 3 मरतबा कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या था वो। लेकिन इससे ये माना निकालना कि हर बात 3-3 मरतबा कहते थे, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप जब समझ लेते थे कि बात अहम है, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू 3 मरतबा करते थे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक और खूबी अता फरमाई थी कि आप छोटे जुमले बोलते थे, बात बहुत समझ में आती थी, जिसको जवाब में कलीम कहते हैं। कि हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी बात करते थे, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता था, माना होता था, तो इसलिए भी बात को दोहराना पड़ता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी तालीम दी हमको बात करने में कि लोगों का IQ देखकर, इंसानी अक्लों को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए। एक गांव में आप बैठे हैं, वहां पर आप जो है वो हाई फाई गुफ्तगू शुरू कर दिए। अब वो बंदा गांव के लोग हैं, गांव वालों के सामने आप खेत की मिसाल दें, गांव वालों के सामने आप गन्ने की मिसाल दें, चने की मिसाल दें, तब गांव वाले उस बात को फौरन समझते हैं और समझ रहे हैं कि ये हमसे मुताल्लिक बात की जा रही है। अब यहाँ से बैठकर हम लंदन की बातें करें और लंदन में पहुंचकर सेंचुरी की बात करें, तो ये दोनों बातें बेतुकी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुकल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, कि लोगों से गुफ्तगू करें उनके अक्ल के मेयार को देख करके। अल्लाह भी देखिए, अल्लाह जितनी मिसालें देता है कुरान में, वो ऐसी मिसालें देता है
कि नीचे वाला समझे, ऊपर वाला नहीं। जब नीचे वाला कोई बात समझ लेगा, निचली सतह वाला, चाहे इल्म के लिहाज से और चाहे अक्ल के लिहाज से, तो ऊपर वाला अपने आप क्या है उस बात को समझ लेगा। लेकिन अगर ऊपर वालों को मद्देनजर रखते हुए बात करेगा तो नीचे वाला हो सकता है कि उसको बेचारे बाउंसर जाए, ऊपर से जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। परवरदिगार जैसे कहता है कि तुमने आसमान को नहीं देखा है, आसमान देखने के लिए आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है? आप जहां हैं वहीं आसमान मौजूद है। क्या आप जमीन के बारे में गौर नहीं करते हैं? जमीन भी वहीं मौजूद है। क्या आप बारिश पर गौर नहीं करते? बारिश भी आपके यहाँ होती है। ऐसी बातें नहीं करता है परवरदिगार आलम कि आपको उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सफर करना पड़े, लोगों से पूछना पड़े जमीन क्या है, जमीन कैसी होती है, आसमान क्या है। ऐसी बातें नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ऐसी गुफ्तगू अपने बंदों से करता है कि जिससे जो है उसको बात समझ में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप देखें मिसालें देते हैं। जो जानवर, कभी जानवर की मिसाल दी, जो जानवर अरब में नहीं पाए जाते उनके किसी का जिक्र आपने नहीं किया कि अब अगर जिक्र कर दिया जाए हाथी का जिक्र, मतलब ऐसे जानवर का, हाथी तो खैर उन्होंने देखी थी, हाथी से जंग नहीं करते थे, हाथी के जरिए जंग नहीं होती थी, अरबों को हाथी से कोई तजुर्बा नहीं था। हाथी देखी थी लेकिन हाथी से तजुर्बा कुछ भी नहीं था। तो घोड़ों का बार बार जिक्र है, लेकिन हाथी का जिक्र जो है वो सूरह फील में आ गया, उसके अलावा कहीं से जो है वो जिक्र नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बात को समझाने के लिए हमेशा क्या करते थे, जैसे खजूर का है जिक्र, खजूर के दरख्त को जिक्र करते थे, इस तरीके से गुफ्तगू फरमाते थे मिसालों के जरिए। बहरहाल लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए, उनके अक्ल के मुताबिक मिसालें ऐसी देनी चाहिए जो उनको समझ में आवे। और गुफ्तगू के आदाब में हमारा इमाम आज़म अलैहि रहमा इस बात के बहुत शद्दोमत से इस बात को कहना चाहते हैं कि इस बात का ख्याल रखे गुफ्तगू करने वाला कि गैर अक्ली बातें बयान नहीं करे, मतलब ऐसी बातें न बयान करे कि इंसानी अकल में वो समझ ही भी ना आवे कि यार ये कैसे मुमकिन है। जैसे आपने कहा कि हम गए और वहां पर कब्रिस्तान पहुंचे, वहां पे एक मुर्दा था, हमने कहा खड़े हो जाओ, वो उठ गया और सलाम कर दिया। उनका अगर ऐसे वाकया खुदा न खास्ता हो भी गए हैं तो बयान करने के लिए नहीं है। अब ऐसे वाकयात जब बयान किए जाते हैं तो पब्लिक खूब सुभान अल्लाह बोलती है। जितना झूठ बोलेंगे आप उतना वो सुभान अल्लाह बोलेगी, जितना कुरान हदीस की सच्ची सच्ची बातें करेंगे ऐसा लगता है सर पे परिंदा बैठा, को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हकीकत ये है, इमाम आदम तो हदीस के बारे में ये बात कहते हैं कि अगर कोई हदीस ऐसी समझते हैं कि आपके अगर बयान करेंगे तो लोगों के अक्ल के खिलाफ होगी, लोग नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसी हदीसों को आप वहां पे बयान नहीं करें। एक बात, गैर फितरी बात नहीं बयान करें गुफ्तगू में, जो गैर फितरी बात है। कभी कभी क्या होता है, जब लड़के बैठते हैं आपस में तो एक कहानी शुरू करता है, हमारे गांव में ऐसा हुआ, अब वो दूसरा भी वैसे ही रिलेटेड शुरू करेगा। कोई तो बनाएगा, झूठी बोलते रहते हैं, बनाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारे गांव में डकैती पड़ी थी, फला हो गया, दुनिया भर की बातें शुरू करेगा। तो ये जो बात है, एक तो झूठ का अलग गुनाह है और दूसरा क्या है, गैर फितरी बात है। तो गैर फितरी बात और गैर अकली बात न खतीब को करना चाहिए न गुफ्तगू में करना चाहिए, कि जिससे लोग जो है, अगर आपने इस्लाम के बारे में बात किया गैर फितरी, तो लोगों को इस्लाम से उनसियत खत्म हो जाएगी। तो गैर फितरी बात और गैर अकली बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, मोजेदात हैं वो हम उस पर हम ईमान लाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। इसी तरह आखिरी बात कहकर बात करता हूं, अगर कोई आदमी के बारे में ये मालूम हो जाए कि ये कटुज्जती कर रहा है, मतलब मैं कह रहा हूं कि 2 और 2 4 होता है, नहीं, कभी कभी 5 भी होता है, आपके समझ में नहीं आती बात। अब ये यकीनी बात है कि ये जहालत कर रहा है। अब इसको आप नहीं समझा सकते, क्योंकि इसने तय कर रखा है मुझे मानना ही नहीं है कि 2 और 2 4 होता है। अब इतनी मोटी सी बात है कि 2 और 2 4 होता है, वो कह रहा है नहीं, कभी कभी 5 होता है, तुमको मालूम नहीं है, हमको बड़ा तजुर्बा है, 5 भी होता है। तो अब ऐसी जगह पर कुरान ने सिखलाया कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि जब इस किस्म के जाहिल लोग तुमसे गुफ्तगू करें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करो, किनारे हो, टाइम बर्बाद नहीं करो। और खासकर दीन के काम करने वालों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि लोग उलझाते हैं। मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा को बहुत से लोग खिलाफ बोलते थे, खुतूत लिखते थे, तो उनके जो कहने वाले थे वो कहते थे हजरत इसका जवाब दीजिए। तो मौलाना बड़ी पति की बात की, उन्होंने कहा लोग यही चाहते हैं कि मैं इनके जवाब देने में मसरूफ हो जाऊं, क्योंकि रोज आएंगे, रोज एतराज होंगे, रोज होंगे,
تو میں ان کے جواب دینے میں اپنے آپ کو مصروف رکھوں گا. میں جو کام کرنا چاہتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ ایسی چیزوں میں بزی کر دیں جو تعمیری کام نہیں ہو بلکہ تقریبی ہو جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. مولانا کہا میں ایسا نہیں کروں گا. بہت مشکل سے بہت زیادہ ہو گیا تو جواب دے دیا انہوں نے, ورنہ جواب نہیں دیتے تھے. وہ کہتے یہ تھے, مولانا نے بہت اچھی بات کہی. مولانا نے کہا کہ یہ خطوط میں رکھتے جاتا ہوں اور ڈھیر سی. انہوں نے کہا قیامت ہوگی, ہم ہوں گے, یہ خطوط ہوگا, وہ بندہ ہوگا اور اللہ ہوگا. میں اپنے اللہ کے سامنے سارے خطوط رکھ دوں گا کہ اللہ یہ معاملہ ہے, آپ اس میں فیصلہ فرمائیے. میں ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کروں. اس کی بھی ہوشیاری بہت ضروری ہے کہ جو آدمی عالم ہے اس کی ہوشیاری ہے کہ کہیں ہم کو بزی تو نہیں رکھا جا رہا ہے. یہ کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے یہودی بہت یہ سب کام کرتے ہیں. آپ سوال ایک آتا ہے کہ ایک ایسے آدمی کا نام بتائیے, جو ایک ایسی عورت کا نام بتائیے جو نبی کی بیوی بھی ہو. واٹس ایپ پر آتا رہتا نا, یہ کیوں؟ اچھا جان کے کیا کرو گے بھائی؟ اگر معلوم ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ اس سے آپ کی آخرت بننی ہے, آخرت بگڑنی ہے, کچھ بننا ہے, کچھ بگڑنا ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن آپ اس میں مصروف ہو گئے. مولانا صاحب کو فون کرو, مولانا صاحب نیٹ پہ دیکھیں, نیٹ والا فلاں سے نکالے. یہ سب کو ایک سوال نہیں کیا کہ ایسے جتنے بھی سوال آئیں آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو یہ کہہ کر کے جواب دے دیں کہ صاحب اس سوال کا آخرت سے اور آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا میں جانتا بھی ہوں, نہیں بھی جانتا ہوں, میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا ہوں. تو بڑے لوگوں کو ان باتوں کو ہوشیار رکھنا چاہیے. آپ کو مصروف بہت دوسرے انداز میں کیا جاتا ہے جس کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے اور مصروف ہو جاتے ہیں. یہ باتیں بیان کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب